formation of blastula, that is the product of cleavage, is known as blastulation. So effect of blastulation, effect of yolk on blastulation, कि योग का ब्लास्टुलेशन पे क्या इफेक्ट आएगा. तो फर्स्टली ब्लास्टुलेशन इज आइसोलेसिथल एग. आइसो मींस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग. जिन भी एग्स के अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका, योग का. उनके केसेस में क्या होता है कि उनके केसेस में नॉर्मली बाहर क्या बनती है, आउटर लेयर. सो दिस आउटर लेयर इज नोन एज ब्लास्टोडर्म. इंटरनल जो कैविटी होती है दैट इज नोन एज नॉर्मली ब्लास्टोसील. यू कैन सी दिस. So this type of blastulation is found in Amphioxus and the Echinoderm. Mainly starfishes के अंदर मिलता है. Mainly starfishes. Isolecythal egg. Blastulation is moderately telolecythal, in which moderate amount of yolk is present. This is type of blastulation is found in amphibian. Mainly frogs के अंदर ये मिलता है. यहाँ पे क्या होगा कि एनिमल हाफ पे तो क्लीवेज इजीली हो जाएगा. जो एनिमल पोल है वहां पे क्लीवेज इजीली हो जाएगा. दिस एनिमल हाफ हैविंग द माइक्रोमियर्स एंड दिस वेजिटल हाफ हैविंग द मैक्रोमियर्स. सो and this cavity is known as blastocele, and this type of blastulation is found in the moderately, in which moderate amount of yolk is present, that is telolecythal egg, where yolk is concentrated mainly toward the vegetal pole. As you know, this one is animal pole and this one is vegetal pole. So due to the presence of cleavage here, macromeres are formed instead of micromeres, and these micromeres are formed at the animal pole where there is a very least amount of yolk is present. Lastly, blastulation is heavily telolecythal egg, in which yolk is maximum. That is found in the reptiles and birds. Here this cavity is formed. This is known as, this one is formed, this one is epiblast, this one is hypoblast, and this complete is known as blastodome. This complete, this one is known as blastodome, and this one is endoderm, you can see, and this cavity is known as, this cavity is formed, this one is known as blastocele, seal cavity. So this type of blastulation is found in heavily telolecythal egg, in which maximum amount of yolk is present. In this type of blastulation, a single layer is properly separated from the rest of the cytoplasm. So this type of blastulation is mainly found in heavily telolecythal egg. So blastulation पे किसका इफेक्ट है, योग का. योग के बेसिस पे कंप्लीट आपको ब्लास्टोसील मिल रही है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी रिड्यूस ब्लास्टोसील मिल रही है, और यहाँ पे दो सेपरेट कैविटी की फॉर्मेशन हो गई. दिस वन इज प्राइमरी योग एंड दिस वन इज कैविटी दैट इज नोन एज ब्लास्टोसील. सो दिस वन इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ योग ऑन ब्लास्टुलेशन. नाउ टाइप ऑफ ब्लास्टुला, कि अलग अलग के अंदर क्या होगा, डिफरेंट टाइप के ब्लास्टुला फॉर्मेशन होते हैं. सबसे पहले ब्लास्टोसीलोब्लास्टुला. दिस टाइप ऑफ ब्लास्टुला इज फाउंड इन एम्फियोक्सिस एंड एकाइनोडर्म. हियर same single layer is formed, that is known as blastodome, and inner cavity is known as blastocele. Stereoblastula, where no blastocele or reduced blastocele. Here the micromere are present over the macromeres. So this type of stereoblastula is found in mainly annelids and the mollusca. Next one is periblastula. This periblastula is also known as superficial blastula. This type of superficial blastula, and as the name indicate, periblastula, here the cleavage occur only at the periphery. Periphery पे cleavage होगा only, और this type of blastulation only found in the insects mainly, क्योंकि insects में क्या होता है, बहुत ही maximum amount में योग होता है, heavily telolecythal होता है. तो उनके केस में जो blastula बनता है that is known as periblastula. डिस्कोब्लास्टुला, ये भी आपका किसमें मिलता है, मैक्रोलेसिथल एग्स के अंदर, जिसमें भी मैक्सिमम योग प्रेजेंट होता है. डिस्को, जिसमें सिंपल क्या होगा, एक डिस्क की फॉर्म में ही वहां पे क्या होगा कि डिस्क की फॉर्म में वहां पे क्लीवेज होगा, और मेनली यहाँ पे जो बनती हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स और फिशेस के केसेस में यहाँ पे आपका सेम ये पैटर्न वहां पे बनेगा. ठीक है. एम्फीब्लास्टुला, इसमें थोड़ा सा अलग जो ब्लास्टुला फॉर्मेशन होते हैं, इसमें क्या बनते हैं, डिफरेंट टाइप के मैक्रोमियर्स होते हैं. मैक्रोमियर्स आर मेनली डिफरेंट टाइप. अपर हाफ होते हैं फ्लैजिलेटेड, और ये स्मॉलर होते हैं, ऑल्सो नोन एज माइक्रोमियर्स. और जो लोअर हाफ होते हैं, दिस आर द एंटीरियर. लोअर हाफ होते हैं वो होते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड. ठीक है. तो
तो ये दोनों ही टाइप के होते हैं। जो फ्लैजिलेटेड हाफ जो पोर्शन होता है ब्लास्टुला का, उसको एंटीरियर हेड पे रख के और फ्लैजिला के थ्रू ये क्या करते हैं, वाटर के अंदर मूवमेंट करते हैं। सो दिस टाइप ऑफ एम्फीब्लास्टुला इज फाउंड इन द स्पंजेस मेनली। लास्ट वन इज ब्लास्टोसिस्ट। दिस ब्लास्टोसिस्ट इज मेनली फाउंड इन ह्यूमंस जस्ट लाइक दैट। आउटर लेयर इज single layer that is known as trophoblast. This one is a nutritive layer. This single layer is known as trophoblast. Trophoblast. And this one is a nutritive layer. At one end it may be animal pole. There is a mass of macromere. This one is known as embryonal knob. Embryonal knob, and this cavity is known as blastocoele, and this is mainly found in eutherians and mainly mammals, human being. So this blastocyst is mainly found in the humans. So these are the different type of blastula which are found in amphioxys है, coeloblastula जिसमें blastocyst absent और reduce होती है, that is mainly found in annelids. पेरीब्लास्टुला पेरीफ्री पे ओनली क्लीवेज जहाँ पे हो रहा है, मेनली इंसेक्ट्स के केस में होता है, ठीक है। डिस्कोब्लास्टुला एक डिस्क की फॉर्मेशन जहाँ पे हो रही है, सब जर्मिनल कैविटी फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एंडोडम बनेगा, एंडोडम डिफरेंशिएट हो जाएगा आपकी एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के केसेस के अंदर, ठीक है। जो एंडोडम होती है वो ही फ्यूचर में इनकी फॉर्मेशन कराती है, मेनली जो होता है एम्ब्रियो यहीं से फॉर्म होता है, ठीक है। तो डिस्कोब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला जिसमें आपके दो माइक्रो और मैक्रोमियर्स बनेंगे। जो माइक्रोमियर्स होते हैं दैट आर as you know flagellated, और जो आपके macromeres होते हैं that are non-flagellated and posterior in position. So this one is amphiblastula and last one is the blastocyst. So blastocyst कहाँ पे मिलता है, mainly humans के केस में here trophoblast, and this bunch of macromeres is known as embryonal knob and this cavity is known as blastocoele. Now what are the significance of blastulation, क्लीवेज एंड मोरुलेशन? ये जो प्रोसेस हो रही है इनसे फायदा क्या है? फर्स्टली एक सिंगल जो यूनिसेलुलर जाइगोट है उससे आपको क्या मिल रहा है, मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल। ये आपको कहां से मिल रहा है, एक यूनिसेलुलर जाइगोट से। सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कैविटी, ये जो ब्लास्टोसील कैविटी बन रही है इसकी वजह से सेल्स है वो इजीली माइग्रेट कर पा रही है। तो वो जो उनकी प्रिजम्पटिव जो एरिया है उनका ऑर्गन फॉर्मिंग का, एज यू नो गेस्टुलेशन के टाइम पे क्या होता है, तीनों जर्म लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, एंड दीज द फेट ऑफ दीज layers ecto, meso and endo is already decided. So the cells due to this blastocoele cavity easily migrate to their presumpting destiny. So this one is the helpful. And lastly due to the cleavage number increase, surface ratio increase, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, सरफेस रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, तो जाइगोट के अंदर जो सेल्स होते हैं वो इजीली एकोमोडेट अपने आप को कर पाएंगी। तो ये क्या है कि हमें एडवांटेजेस है किससे, क्लीवेज से, जिसमें नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज नहीं हो रहा। ब्लास्टोसील में क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आपको ब्लास्टोसील कैविटी मिल रही है, सॉरी ब्लास्टोडर्म मिल रही है, अंदर जो कैविटी है दैट इज ब्लास्टोसील। एंड दिस वन, इसको हम क्या कहेंगे, दिस वन इज द मोरुलेशन। सो दिस वन इज अबाउट द कंप्लीट ब्लास्टुलेशन, कि ब्लास्टुलेशन डिफरेंट टाइप के एक्ट्स में कैसे होता है और जो ब्लास्टुला है वो कितने टाइप्स के एक्चुअली में होते हैं और उनके एडवांटेज क्या क्या है।